Welcome back to online class of class 10th English. Dear students, in our previous lecture, we have studied that in the story A Triumph of Surgery, our narrator, James, meets Mrs. Pamphray along with her dog, Tricky. Tricky has become hugely fat that even cannot walk properly. Mrs. Pamphray tells that it it cannot walk properly. She tells that Tricky was suffering from malnutrition, so she has added some extra diet in his diet plan. So narrator came to know the reason of the Tricky's illness, and he tells her to take the dog along with him. Although it was very difficult for Mrs. Pamphray to take the dog, to send the dog with him, but still she agrees. We have done till here. Last paragraph of second page. We are starting from here. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. So it was, narrator says कि I took a firm line. Means narrator थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए, and Tricky was ill and this was the only way to save him. अब Tricky क्योंकि ill हो गया है, बहुत बीमार हो गया, तो अब उसने बताया कि एक यही रास्ता है कि हम Tricky को बचा सकते हैं. In fact, I thought this was the best way to save Tricky. Without any delay to just take Tricky with him. Now, and followed by Miss Pampray's wailing. Now, narrator was followed by the Mrs. Pampray's wailings. Wailings means cries, sadness. So now she would be crying for Tricky. So this all made him sad, but he didn't change his idea. I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. Now he marched out means came out of the car to the car carrying the little dog. It was wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in out to bring the things, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper balls, all these things. All this entire staff of the house, Mrs. Pampray's house, all the maids, वो सब ने ट्रिकी का सारा सामान, उसके सोने का, रात को सोने का बिस्तरा, उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, उसके रबर रिंग्स जिनसे वो खेला करता है, ब्रेकफास्ट का अलग बॉल है, उसका लंच का अलग बॉल है, एंड सपर टाइम, मील टाइम, रात का अलग बाउल है. तो ये सब चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की करने लगे सारे सर्वेंट्स. Realizing that my car would never hold all this stuff. अब नरेटर को समझ आ गया कि इतना सारा सामान उसकी कार के अंदर नहीं आ पाएगा. I started to drive away. So he started driving. He started drive away. As I moved off, Mrs. Pamphray, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. Up now, as it moved off, the narrator moved off. मिसेस पैम्फ्रे विद डिस्पेयरिंग क्राई, जोर जोर से अब रोने लगे, बहुत दुखी होकर रो रही हैं. और उन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे कोट्स थे उनको, जो ट्रिकी के कोट्स थे पहनने के, डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उसके ठंडे गरम अलग तरह के कोट्स थे, कम गरम, कुछ अलग अलग तरह के जो भी वैरायटी ऑफ कोट्स थे, वो उन्होंने विंडो से, उसके कार के विंडो से उसको थ्रो कर दिया, कार के अंदर थ्रो कर दिया. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. Now, अब जब गली के एंड में नरेटर पहुँचे तो उन्होंने जब टर्न करने के लिए कार टर्न करनी थी, अब उन्होंने देखा कि everybody was in tears, कि सभी रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal. Now, out on the road,
जब वो रोड में पहुँचे तो उन्होंने उस लिटिल पैथेटिक एनिमल की ओर देखा. पैथेटिक एनिमल कौन था? ट्रिकी. ऑन द सीट बाय माई साइड, जो उनकी सीट के साथ में बैठा हुआ था. आई पैटेड द हेड. नाउ द नरेटर पैटेड इट्स हेड. पैटिंग इज टू, जैसे हम कहते हैं किसी को पैट करना, थपथपी देना, शाबाशी देना, तो उसको वैसे ही उन्होंने सर पे उसके हाथ फेरा. तो उससे उन्हें बहुत ज़्यादा जब पैट किया तो ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. वैगिंग इज टू मूव हिज टेल. सो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा अपनी टेल को मूव करने के लिए. मीन्स वो इतना ज़्यादा फैट हो चुका है कि अपनी टेल को भी नहीं हिला सकता है. I said you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. So the narrator, he said that you haven't a kick in you. Means तुम्हारी बॉडी के अंदर बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है. I know, but I think I know a cure for you. But मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई इलाज है. So here the question we'll read out: is the narrator as rich as Tricky's mistress? Do you think that he is rich? No, we don't think so. ये हम आगे इस पे देखेंगे. ये सब questions का answer next passages में है. How does that he treat the dog? Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? And why does Mrs. Pemfrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? So at the surgery, the household dogs surged round me. Now, when he reached surgery means at the hospital. So अब जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने देखा सारे के सारे जो घर के डॉग्स थे, दे सर्ज मीन्स इधर उधर घूमना, मंडराना. अब ट्रिकी के आसपास वो मंडराने लगे. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. Now Tricky, it looked down and when put down, जब उसको नीचे रखा गया, it lay motionless on the carpet. तो वो बिना किसी मूवमेंट के motionless होकर बस कार्पेट के ऊपर ऐसे ही सुस्त होकर लेट गया. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जो अदर डॉग्स वहाँ पर थे, उनके सर्जरी में थे डॉग्स, तो उन्होंने ट्रिकी को ऐसे देखा. उनके लिए बहुत अलग टाइप का स्टफ़ था. उन्होंने थोड़ा सा उसको स्निफ़ किया. स्निफिंग मीन्स सूंघा उसको कुछ सेकंड्स के लिए. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये तो बहुत अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट लग रहा है, मतलब हमारे मतलब का नहीं है, हमारे टाइप का नहीं है. और उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसको इग्नोर करके चले गए. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. So it made up a bed. बेड मीन्स बेडिंग, उसके लिए अब एक अलग बिस्तर बनाया गया. और वो किस में बनाया? इन अ वार्म लूज बॉक्स के अंदर, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. तो जहाँ और डॉग्स को रखा जाता था वहीं पर उन्होंने उसके लिए भी एक बॉक्स में सोने के लिए जगह बनाई. For 2 days, I kept an eye on him. Now, narrator kept an eye on him for 2 days and giving him no food but plenty of water. He didn't give any food to him for 2 days, just gave him plenty of water. खूब पानी पिलाया गया उसे और खाना बिल्कुल भी नहीं दिया गया. At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Now, it started showing some interest in his surrounding. At the end of second day, थोड़ा सा आसपास जगह में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया उसने. And on the third day he began to whimper. अब थर्ड डे उसने थोड़ा सा whimpering होता है, to cry loudly, थोड़ा सा तेज़ी से भौंका, थोड़ा सा अपना उसने मूवमेंट दिखाया. When he heard the dogs in the yard, जब उसने देखा कि उनके यार्ड में डॉग्स जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, उसने जब उनकी आवाज़ें सुनी तो उसने भी उसमें मूवमेंट दिखाई. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. When I opened means when the narrator opened the door, Tricky was trotting means came out and was immediately engulfed by Joe. So engulfing is surrounded. So it was surrounded by Joe. Joe was another species of another dog
हु इज़ ग्रे हाउंड स्पीशीज़ का है एंड उसके अदर डॉग्स जो थे वो सब वहाँ पर ट्रिकी उनके साथ बाहर आया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, अब जब उसको रोल किया उसको सब डॉग्स ने एंड उसको थॉरली इंस्पेक्ट किया, उसको ऊपर से नीचे हर तरह से देखा. द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी को थोड़ा सा देख कर मूवमेंट करके अब वो सारे के सारे डॉग्स गार्डन की ओर चले गए. मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब ट्रिकी भी थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट किया, उनके पीछे पीछे उन्हें फॉलो करने लगा. रोलिंग स्लाइटली बिकॉज ही कैन नॉट वॉक ड्यू टू हिज सरप्लस फैट. सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा फैट. अब इसकी बॉडी में इतना फैट है कि वो अपनी बॉडी को प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता. इट इज़ रोलिंग स्लाइटली. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. I watched while Tristan sloped the food into the bowls. There was the usual headlong rush. So later that day, narrator was present at the feeding time. जब dogs को खाना दिया जाता तो narrator वहाँ पर present थे. I watched while Tristan. Now it watched while Tristan is his cook who used to feed dogs food. He gives them food. तो he sloped the food. Sloping is फूड को पोर करना, उडेलना. उनके जो खाना जिसमें खाते हैं जिस कटोरी में, तो उसमें उन्होंने उडेला. into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Now as soon as it gave them food, there was a headlong rush. Headlong rush means सबके सब डॉग्स एक साथ आ गए खाने के लिए. तो उनकी जो साउंड थी भौंकने की, उनकी बार्किंग की साउंड थी, बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, एंड उनके खाने की जो इतनी स्पीड से खाना खा रहे हैं वो सब साउंड एवरी डॉग न्यू. क्यों थी? क्योंकि एवरी डॉग इट न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो पीछे रह गया तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन. तो उसे अब खाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन करना पड़ेगा. मीन्स उसके लिए खाना बचेगा नहीं और उसको फिर compete करना पड़ेगा बचे हुए खाने के लिए. सो देयर वॉज अ हेडलॉन्ग रश. When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls. Now, when they finished, all the dogs, they finished their meal. Now, Tricky ने भी उन्हें देखा and it walked round the shining balls. अब उन्होंने जिस बॉल्स में उन्होंने खाना खाया था तो ट्रिकी भी उसके अब चारों ओर घूमने लगा और थोड़ा सा उसने उसको लिक किया. लिकिंग कैजुअली, हल्के से बस थोड़ा सा उसने उसको चाटा. इनसाइड वन और टू ऑफ देम, एक दो बाउल्स को उसने भी चाटा. इट मीन्स थोड़ा सा उसको भी शायद कुछ इंटरेस्ट लगा उसमें. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम. सो व्हाट डज इट शो? मीन्स अब ट्रिकी को थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगी है. मीन्स अभी 2 दिन तक वो इतना खाना खा चुका था कि 2 दिन तक उसको कोई परवाह ही नहीं थी. उसे अगर खाना नहीं भी मिला तो उसे कुछ भूख ही फील नहीं हो रही थी. मीन्स वो इतना ज़्यादा खाना उसको दिया जाता था. सो अब थर्ड डे से, नेक्स्ट डे से अब उसको थोड़ा उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी, आई मीन्स हैरियट, नरेटर, he was pleased to see him jostling his way. Now he was very happy to see. Jostling means fighting, that he was pushing away towards it. Means he was going other dogs को या अपने आप को आगे को धकेल रहा है कि वो खाना खाए. So from then on his progress was rapid, and from that day then on his progress was very rapid. Rapid means अब बहुत speedy progress होने लगी उसकी health में. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. Now he had no medicinal treatment. अब उसको कोई दवाई या कोई medicinal treatment नहीं दिया जा रहा था, but all day he ran about with the dogs. अब वो dogs के साथ रन करता था, इधर से उधर भागता था. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. सो अब वो उन डॉग्स के साथ इधर से उधर भागता था
और उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होते हैं, स्ट्रगल्स, उनके जो स्ट्रगल्स हैं उनके लिए वो उनको उनके साथ वो कंपनी करता था, उनके साथ स्ट्रगल करता था उन चीज़ों के लिए. सो he became expected now he discovered the joys of being bowled over, tempered, tramped on and squashed every few minutes. Now he discovered the joy, he is feeling joyous, so उसको मज़ा आने लगा है of being bowled over means अब उसके ऊपर से जब उसको इन सब चीज़ों के लिए जो परिश्रम करना पड़ रहा है, जो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन चीज़ों में उसे मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब उसको अपने आप को बचाना है. कोई डॉग उसको पुश ना कर दे, कोई बॉल ओवर ना कर दे, उसके ऊपर स्क्वैश ना कर दे कोई. ये सब चीज़ें उसको मज़ा दे रही हैं, उसको बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को बचाने में, इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करने में. ही बिकेम एन accepted member of the gang. Now of the dogs gang he became an accepted member. An unlikely silky little object, and it was an unlikely silky little object among the shaggy crew. Shaggy होते हैं बहुत भद्दे से, गंदे से, means rough hair वाले. Crew means all the dogs. Fighting like a tiger for his share at meal time. Now it was means that dog, it was fighting like a tiger for his share at the meal time and hunting rats in the old hen house at night. Now it used to hunt and it used to do other activities like the other dogs do. अब वो rats को पकड़ने के लिए, खाने के लिए hen house के आगे रात को इधर से उधर भागता था चूहे पकड़ने के लिए. सो ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा इतना स्ट्रगल वाला टाइम नहीं देखा था. सो all the while Mrs. Famfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. Here अब Mrs. Famfrey वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत एंक्शियस है. किस चीज़ के लिए? पैम्फ्री की वेलबींग के लिए, उसकी हेल्थ में कितना सुधार हुआ है. सो ऑल द वाइल, सब हर टाइम, हर समय मिसेस पैम्फ्रे होवरिंग इज़ टू मूव हेयर एंड देयर, इधर से उधर घूम रही है. एंक्शियसली, बहुत परेशान हो रही है, बहुत चिंतित हो रही हैं. बैकग्राउंड में इधर से उधर घूमती हैं. रिंगिंग अ डजन टाइम्स, और in a day a dozen times she rings means दर्जनों बार वो फ़ोन कर देती थी. डजन टाइम्स, अ डजन टाइम्स मीन्स अ डजन टाइम वो दिन में फ़ोन कर देती थी. एक दर्जन टाइम तो वो एक दिन में ही फ़ोन कर देती थी. फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स मीन्स लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कि डॉग की कैसी वेलबींग है, कैसी तबीयत है. आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड. नाउ आई मीन्स नरेटर, जब उससे मिसिस पैम्फ्रे पूछा करती तो नरेटर ही डॉजिंग होता है, डॉज होता है इग्नोर करना क्वेश्चंस को, अवॉइड आंसरिंग. सो अब नरेटर क्या करते थे, वो उसकी कभी कभी बातों को डॉज कर देते थे. तो उन्होंने अब उसकी बातों को डॉज कर दिया. द क्वेश्चंस वेदर हर क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करने में डॉज करते थे, वो अवॉइड करते थे. जैसे उसके क्वेश्चन चेंज हुए नहीं, दे आर टर्न रेगुलरली, और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो was out of danger and convulsing rapidly. Now अब वो इन सब बातों की बजाय उन्होंने उसको बताया, मिसेस पेम्फ्रे को बताया कि he was able to tell that the little fellow means are tricky, he was out of danger and convulsing rapidly, that is recovering from the illness rapidly, बहुत जल्दी ही वो उससे ठीक हो रही हैं. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pamphray. अब जैसे ही मिसिस पेम्फ्रे ने ये वर्ड सुना तो she became very happy. It was something very important for her. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. Now she started to bring, अब उनके लिए डॉग की हेल्थ के लिए अब वो राउंड फ्रेश एग्स डेली लाने लगी. 2 dozen एट अ टाइम, एक टाइम में 2 dozen लाया करती थी एग्स. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी को स्ट्रेंथ मिले, वो
ताकतवर बने. For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast. Now for happy periods means they all the doctor and his friends, they were happy to have these eggs. They had 2 eggs each for breakfast. So all the members, all the doctor and his friends, they used to have 2 eggs for every day for the breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. Now, when the bottles of wine began to arrive, अब जब शराब वाइन आने लगी तो रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन उनको समझ आने लगी. अब क्या सिचुएशन थी वो कि इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड एंड द सिचुएशन वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, कि उसके ब्लड जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए. And lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. And now lunch, it became a ceremonial occasion. Ceremonial means festive occasion. अब उन लोगों को तो बहुत मज़ा आने लगा क्योंकि इतना अच्छा खाना मिलने लग रहा है उनको ट्रिकी की वजह से. तो दे फील वेरी happy, very festive. And 2 glasses of wine before and several during the meal. So they are very happy to get these meals and this all. Now during the meal, so they all were very happy to have this. Now come to next page. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. Now, they could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. Now, अब उनको जब खाने के लिए ये सब अच्छा मिलने लगा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ट्रिकी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब मिसेस पेम्फ्रे ने भेजा है. सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फेस्टिव बॉडी. फॉर फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फॉर ट्रिकीज बॉडीज, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भेजा गया. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. अब कुछ रातों उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि उनको पीने के लिए अच्छी वाइन मिल रही थी. एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे इनहेल इट एंड दे ड्रिंक इट. दे वर डेज ऑफ डीप content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. Now they were the days of deep content. Now these were the days of deep content. Why? Because they were very happy. उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था. They feel contented. बहुत संतुष्टि फील होती थी because they are getting extra meal in the morning, improved and sustained by the midday wine, and then finishing luxuriously round the fire with the brandy. And at the day morning में eggs मिल रहे हैं, दिन में wine मिल रही है, and then at night time अराउंड दी फायर बैठ के वो ब्रांडी पी रहे हैं. तो उनको अभी ट्रिकी की वजह से दे ऑल आर एन्जॉइंग सो मच, दे फील कंटेंटेड. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pemfrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So now it was a temptation. अब उन्हें जब इतना अच्छा खाने के लिए मिल रहा था टिक्की की वजह से, तो उनको थोड़ा सा टेम्पटेशन होता है, लालच. तो उन्हें अब एक लालच था कि क्यों ना हम टिक्की को एक परमानेंट गेस्ट ही बना ले अपना, कि उसको यहीं पर रख लेते हैं हम. एक परमानेंट गेस्ट मीन्स अभी उसकी बीमारी को और आगे बढ़ाया जाए कि अभी ठीक नहीं हुआ है, हम इसको ऐसे ही आगे अपने पास परमानेंट गेस्ट की तरह रखें ताकि अच्छा खाने को मिले. बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट. नाउ अब ही न्यू दैट मिसेस पेम्फ्रे वॉज सफरिंग ऑफ किस चीज़ की सफरिंग हो रही है उन्हें, जो अपने डॉग से वो बिछड़ के अलग रह रही हैं, बिकॉज शी कैन नॉट लिव विदाउट her dog.
So after a fortnight means after 14 days, felt compelled to phone. Now he felt compelled होता है अपने आप को रोक नहीं पाया वो फ़ोन करने से, क्योंकि उनको लगा नहीं ये गलत होगा अगर हम ट्रिकी को अपने पास रख लेंगे, क्योंकि मिसेस पेम्फ्रे ट्रिकी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उसके बिना नहीं रह सकती। तो नरेटर ने अब उन्हें फ़ोन लगाया और बताया कि उनका डॉग जो है रिकवर हो गया एंड अब आप उसे ले जा सकती हैं। अवेटिंग कलेक्शन मीन्स अब वो भी अपना कलेक्शन का मतलब वापस जाने के लिए बेताब हो रहा है, अवेटिंग। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up. Now within minutes, अब जैसे ही कॉल किया तो ऐसे जैसे उन्हीं के कॉल का वेट हो रहा हो, विदिन कुछ ही मिनटों में उनके सामने एक 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, इतनी लंबी ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मीन्स एक ब्लैक कार, मेटल आया सामने मीन्स एक कार आई आउटसाइड द सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल के बाहर। The chauffeur opened the door. Now, chauffeur is the driver. It opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Femfrey almost lost in the interior. Now, it could only figure out Mrs. Femfrey because इतने सारे कपड़े उन्होंने पहने हुए, इतना सब इंटीरियर उन्होंने पहना है, मफलर, स्कार्फ, ईच एंड एवरीथिंग. सो he could not even, he could just make out the figure that she is Femfrey only. Her hands were tightly clasped. Clasp होता है टाइटली जोड़ के रखना, टाइटली मतलब एक हाथों को कस के बांधा हुआ है क्योंकि बहुत ठंड है. इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, अब उसके लिप्स जो हैं ट्रैम्बल कर रहे हैं. इसके दो रीज़न है, एक तो बाहर ठंड बहुत है और दूसरा रीज़न कि वो एक्साइटेड बहुत हैं कि उनका डॉग जो है वो ठीक हो गया. तो इस एक्साइटमेंट की वजह से भी उनकी लिप्स बहुत ट्रैम्बल कर रहे हैं. Oh, my Harriet, do tell me the truth. Is he really better? Now she asked, Harriet, please tell the truth. सच में बताओ कि यह ट्रिकी सच में ठीक हो गया है. Yes, he is fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. So narrator says कि yes, वो सच में ठीक हो गया है और आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की. As it is very cold, मैं खुद ही जाकर ट्रिकी को fetches to bring, बाहर लेकर आ जाता हूँ. I walked through the house into the garden. Now through the house, he walked through the house, अब घर में गया और फिर into the garden, he reached into the garden, वहाँ गार्डन में पहुँचे जहाँ पर a mass of dogs was hurtling round and round. Mass of dogs means so many dogs were there. They were hurtling means एक दूसरे को, अब वो क्या कर रहे हैं, दे आर वेविंग स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से इधर से उधर भाग रहे हैं. राउंड एंड राउंड दी लॉन में, गार्डन के लॉन में वो राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं सारे डॉग्स. एंड इन देयर मिड्स, अब उनकी भीड़ में, उन सबके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी. और उन सब के बीच में हमारा प्यारा सा ट्रिकी भी अपने कान फड़फड़ाता हुआ, टेल को वेव करता हुआ एक गोल्डन फिगर था ट्रिकी डॉग. In 2 weeks he had been transformed into a lit. Now in 2 weeks, अब 2 हफ्तों में ही वो एक इतने बड़े, इतने हैवी शरीर से एक इतनी स्लिम बॉडी में चेंज हो गया. एंड हार्ड मसल्ड एनिमल, एक हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया है. उसके मसल्स बहुत अच्छे से मेंटेन्ड हो गए. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, एंड उसके पैक्स जिसे बोलते हैं बॉडी के पैक्स अच्छे बन गए. बॉडी में मसल्स आ गए, स्ट्रेच हो जाती थी उसकी बॉडी. जो बॉडी को इतनी मेहनत लगती थी एक टेल को मूव करने में, वो बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रेच आउट हो गई है इन ग्रेट बाउंड्स. बहुत अच्छे से वो बॉडी स्ट्रेच कर पाता था. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग दी ग्राउंड, एंड उसकी चेस्ट इतनी स्ट्रांग होती थी वो कि ज़मीन को भी छू देती थी. आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. Now narrator carried him back along the passage. जब वो उसे वहाँ से वापस लेके आए to the front of the house. अब घर के सामने, कहाँ पर, जहाँ पर कार खड़ी थी वहाँ सामने लेकर आए. The chauffeur was still holding the car door open. अब
कार शॉफर ने कार का डोर अभी तक होल्ड किया हुआ है, वो खुला ही रखा हुआ है. When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. Now अब जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो उसने इतनी जोर का जंप किया. इट सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेज लैप. उसने मिसेस पेम्फ्रे के लैप में बहुत जोर से डाइव किया, इतनी जोर से जंप किया दैट शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह. इतनी जोर से जब उसने जंप किया तो उनके मुंह से निकला ओह. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर है. मीन्स इतनी ज़ोर से जंप किया कि उन्हें अपने आप को अपने आप को बचाना पड़ा. बट एंड इट स्टार्टेड लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और अब ज़ोर ज़ोर से वो एक्साइटमेंट में, खुशी से ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और उनका फेस चाटने लगा. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, balls, none of which had been used. Now, during this excitement, अब जब मिस्ट्रेस एंड डॉग ये सब दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा ईगर है, इतने एक्साइटेड हैं, नरेटर ने शॉफर को हेल्प किया. उसकी बेडिंग, टॉयज़, कुशन्स, कोट्स और बॉल्स जो भी कुछ वहाँ से लेके आया था, जो इनमें से नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जो कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, वो सब उन्होंने उनको वापस दिया. एज द कार मूव अवे, अब जैसे ही कार मूव हो गई, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. अब मिसेस पेम्फ्रे ने विंडो के बाहर से झांका. टीयर्स शोन इन हर आइज़, और उनकी आँखों में टीयर्स, आंसू चमक रहे थे. ये किस चीज़ के आंसू थे? खुशी के आंसू. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड एंड हर लिप्स वर ट्रैम्बलिंग टू से, देन हाउ कैन आई थैंक यू सर, हाउ कैन आई थैंक यू, कैसे मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूँ. दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये आपकी और सर्जरी की जीत है. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स she thinks that Tricky had been cured by the surgery he had that Tricky has undergone a surgery. means उसका एक ऑपरेशन हुआ है जिससे उसकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट था उसको कट डाउन कर दिया, उसकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट जो है उसको हटा दिया गया है, और अब वो इतना स्लिम ट्रिम डॉग, एक्टिव डॉग बन गया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द chapter A Triumph of Surgery.